امی کا جھوٹ پکڑا گیا، زینت کو کس نے اور کیوں گھر سے نکالا؟ ایک حیدرآبادی سب پہ پڑ گئی بھاری، سب کو آتے ہی الگ الگ کر دیا۔ نور اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ رہتی تھی، چھوٹے گھر میں رہتی تھی، پر کبھی اس نے الگ ہونے کی بات نہیں کی۔ ریاض کی بیوی بنی بنائی ملکیت کی مالک بن گئی ہے، اور زینت کو ایسی کیا بیماری ہے جو کہ وہ ہاسپٹل جا رہی ہے، ہاسپٹل کے چکر لگا رہی ہے، اور اتنی ساری دوائیاں جو کہ زینت لے کر آئی ہے اپنے لیے پورے مہینے کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی ویڈیو میں زینت کے پاس اتنے کمنٹس آئے ہیں جہاں پوری فیملی ایک ساتھ نظر آئی ہے، وہیں ان سب کو گھر سے باہر دیکھا گیا ہے۔ پورا ولاگ زینت کا گھر سے باہر بنا ہے۔ سرفراز بھی تھا، سرفراز کے ابو بھی تھے، اور یعنی کہ ریاض، زینت سب تھے، پر نازیہ نہیں تھی وہاں پہ، اور نہ ہی نور تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نور تو چلو بھابھی ہے اور صبا بھابھی ہے، باقی یہ چاروں بہن بھائیوں میں 3 بہن بھائی تھے، باقی نازیہ وہاں نہیں تھی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو گائز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دنوں سے اس فیملی کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی، تو جب سے زینت گمنام تھی، زینت کا کچھ پتہ نہیں تھا، پر اب زینت سامنے آ گئی ہے، باقاعدہ اپنے بلاگ بنا رہی ہے، بلاگ کے اندر اپنی فیملی کو دکھا رہی ہے۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کل کے بلاگ میں وہ پہلے اس نے اپنے نیچے ابا کے گھر کی صفائی کی، پھر اپنے گھر کی صفائی کی، پھر کھانا وانا پکایا، ہر کام کر کے وہ پھر ہاسپٹل گئی ہے، وہاں سے ابا کی گھڑی وغیرہ صحیح کروائی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ سب کو ایک سرپرائز دے رہی ہوں۔ تو سرپرائز اس نے یہ دیا کہ وہ اپنے گھر گئی تھی، یعنی کہ اپنی امی کے گھر گئی تھی۔ تو وہاں پہ جب وہ گئی ہے تو نہ ہی اور سرفراز بھی تھا وہاں پہ، اور زینت بھی تھی، ٹھیک ہے، نازیہ وہاں نہیں تھی، کیونکہ اب جو بانڈنگ بن رہی ہے وہ یہ تینوں بہن بھائی آپس میں سلجھا رہے ہیں، پر نازیہ ابھی بھی بیچ میں نہیں ہے۔ نازیہ ویسے تو گھر میں آتی ہے، بلاگ بناتی ہے اور چلی جاتی ہے، پر ان دونوں بہن بھائیوں کو گھر میں بلاگ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ گھر سے باہر ہی پورا بلاگ بنا رہے تھے، اور آپ ان کی امی کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فیملی ساتھ ہونے کے باوجود ایک تو ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اوپر سے ایک مینٹلی وہ ڈسٹرب ہے اپنے بچوں کو لے کے، تو وہ ان کا چہرہ بھی الگ ہی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، کہ الگ ہی مطلب اداسی والا چہرہ ہے۔ تو وہاں پہ ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے گھر میں، جیسے کہ اتنا بڑا گھر بنایا ہے، پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی اگر سرفراز الگ ہوا ہے تو سرفراز نے یعنی کہ اپنا مستقبل بنانا چاہ رہا تھا، اس لیے سرفراز گھر سے الگ ہو گیا۔ تو بات کرنے والے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ چلو سرفراز تو گھر بنانے کے لیے الگ گیا ہے، اپنا مستقبل بنانے کے لیے الگ گیا تھا، پر زینت کا ایسا کیا تھا جو کہ زینت کو گھر سے نکال دیا، اور وہ بھی سرفراز سے پہلے؟ امی کہیں رہ رہی ہیں، ابو کہیں رہ رہے ہیں، زینت کہیں رہ رہی ہے، سرفراز کہیں رہ رہا ہے، اب پورا گھر جو ہے وہ ریاض اور اس کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ مشورہ یہ بھی دے رہے ہیں کہ امی کو کہ آپ ایسا کریں، ابا اور زینت کے پاس جا کے رہیں، تاکہ ایک آپ کی اپنی بانڈنگ بن جائے، اور دوسرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سرفراز کو کہ سرفراز آپ پرانے گھر میں جا کے رہو وہاں پہ، تاکہ زینت کو بھی سپورٹ مل جائے، زینت اکیلی ہے وہاں پہ۔ اور کہنے والے یہ بھی کمنٹس کر رہے ہیں، کیونکہ کل کی ویڈیو میں زینت کے اتنے کمنٹس تھے کہ آپ لوگ سوچ کے مطلب سن کے حیران ہو جاؤ گے کہ کون سی بات ہے اور کس بات کا جواب دینا چاہیے۔ تو کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امی کا جھوٹ جو پکڑا گیا ہے وہ یہیں سے پکڑا گیا ہے۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ سرفراز تو چلو اپنا مستقبل بنانے نکلا تھا، زینت کا ایسا کیا تھا؟ اگر زینت کے ساتھ جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں، زینت کے زخموں کو کریدا جا رہا ہے، یا آپ دوائیاں بھی دیکھ سکتے ہیں زینت کی کتنی ساری ہے، جو کہ پورے مہینے کا ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ اب یہ کیا بیماری ہے زینت کو، کیا وجہ ہے، کس چیز کا اس کا علاج چل رہا ہے، وہ ابھی کچھ نہیں پتا۔ کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں کو پتا تھا کہ زینت کا آپریشن ہوا تھا، اور وہ ماشاءاللہ سکسیس بھی ہو گیا تھا اور اچھا بھی تھا، پر
पता नहीं किस चीज़ की उसकी मेडिसिन चल रही है, ये ज़ीनत ने अभी वाज़ेह नहीं किया है। फ़िलहाल उसने अपनी बस तबीयत की थोड़ी सी अपडेट दी थी कि मेरा इलाज चल रहा है और बाकी अल्लाह मालिक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सरफराज अलग होने के बाद अपने घर में बहुत खुश है और वो जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है उसकी नज़र में वो कम है। कि वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी सेटल हो जाऊंगा। मेरा माइंड जब मैं अपने घर से निकला था तो मुझे ये था कि मैं तकरीबन मुझे 2 से 3 महीने लग जाएंगे सेटल होने में। पर उसका कहना यह है कि अभी देखें फरवरी का लास्ट चल रहा है और मैं फरवरी के स्टार्टिंग में घर से अलग हुआ था और अल्लाह पाक ने मेरी इतनी मदद की है, इतनी मदद की है, जिसे कहते हैं ना गैब के दरवाज़े खुल गए हैं। तो अल्लाह पाक ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं माशाल्लाह अपने घर में बिल्कुल सेटल हूँ, बिल्कुल सही हूँ। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि बस अपने घर की ये ख्वाहिश है तो अल्लाह पाक इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी करे, हर किसी की ये ख्वाहिश पूरी करे। जिनके पास घर नहीं है अल्लाह पाक उनको घर अता फ़रमाए और किराए के घरों से अल्लाह पाक सबको बचाए, क्योंकि किराए की घर बहुत ही मतलब कि आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि सर पे बोझ वो वाली चीज़ है। बेशक आपकी अपनी झोपड़ी भी है ना तो वो भी आपके लिए महल है और किराए का महल भी आपके लिए कहते हैं ना कि बहुत बड़ा बोझ है। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर दे, अपने घरों में रहना बसना नसीब करे। तो गाइस यहाँ पे बात ज़ीनत की आ रही है कि ज़ीनत अब सबको मिलवाने की कोशिश तो कर रही है पर ख़ुद वो अंदर से टूटी हुई है, अपने आप को मजबूत कर रही है। तो कमेंट्स ये भी आया था कि सबके घरों के मामले होते हैं पर आपके घर का मामला बिल्कुल अलग है। भाई अलग है, रियाज़ अलग है, सरफराज अलग है, अम्मी अलग रह रही हैं और आप अलग चली गई हो। अगर आपका मसला मसाइल नहीं हुआ होता तो क्या तब भी ज़ीनत के भाई ज़ीनत को घर से निकाल के फेंक देते? तो आज उसके बुरे वक्त में उसको घर से अलग क्यों किया गया? और ज़ीनत जो कमेंट्स उसको अच्छे भी लग रहे थे उनको उसने लाइक किया है और एक कमेंट्स तो ज़ीनत के मुताबिक ही आया था, उसका ज़ीनत ने रिप्लाई भी दिया है कि आपको घर से क्यों निकाला? आपको तो अभी भाइयों की ज़रूरत थी, आपको अपनी अम्मी की ज़रूरत थी, आपको क्यों निकाला? तो ज़ीनत ने उसका भी जवाब दिया कि मैं ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, मैं ख़ुद अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी के ऊपर जाऊं और किसी के ऊपर बोझ बनूं। तो ज़ीनत ने ये भी जवाब दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई आज के दौर में लड़की को खुद ही अपनी ज़िम्मेदारी संभालनी चाहिए, ना तो शौहर के ऊपर रहना चाहिए, ना ही बच्चों के ऊपर रहना चाहिए और ना ही बहन भाइयों के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि जो एक बाप ज़िम्मेदारी उठाता है ना वो ज़िंदगी में या दुनिया में कोई नहीं उठाता है। एक घड़ी शौहर भी आपको ताना दे देगा कि मैं किस चीज़ की कमी छोड़ रहा हूँ, पर बाप से आप जितने भी नाज नखरे उठवा लोगे बाप कभी भी ताना नहीं देता है। तो इसलिए औरत को मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद बाकायदा मजबूत हो और उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, ठीक है। तो मजबूत हो, किसी का मोहताज ना रखे अल्लाह पाक, किसी भी बहन बेटी को किसी का मोहताज ना रखे, ना शौहर का ना बच्चों को। वो उनकी एक अपनी ज़िम्मेदारी है जो कि वो पूरी करे और औरत का भी हक़ है कि वो जो रिश्ते उसके नसीब में अल्लाह ताला ने जोड़े हैं वो उनसे अपना हक़ मांगे। पर जो एक ज़िम्मेदारी है ना जो कि हक़ मांगने के बाद भी वो अपने आप को मजबूत रखे। तो ये मेरी नज़र में कहना है और मैं आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। पर ज़ीनत को देख के आजकल वाकई बहुत बुरा लग रहा है, पर ये शायद हमारे देखने का नज़रिया है। क्या पता कल को ज़ीनत ने जो कदम उठाया है उसके लिए वो बेस्ट हो, बेस्ट से बेस्ट हो। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसको अच्छा जीवन साथी दे, उसको अच्छे नसीब करे। उसके जो कि उसकी अम्मी उसकी तरफ से अगर थोड़ी बहुत परेशान भी हैं तो अल्लाह पाक उनकी अम्मी की भी ये जो परेशानी है ना वो दूर करे। क्योंकि बेटी की जो परेशानी होती है ना माँ को खा जाती है, औलाद की परेशानी तो वैसे ही माँ को खा जाती है। और इस दौरान इनकी अम्मी वाकई बहुत डिस्टर्ब है। और यहाँ सब अभी आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग तो हाँ ये भी कह रहे थे कि पर्दे में रह के उसने घर को बिखेर दिया है, घर को अलग अलग कर दिया है। खुद तो पर्दे में रहती है पर पूरे घर को अलग कर दिया है उसने। तो गाइज आप जो भी बात कर रहे हो वो सही है पर पर्दे के ऊपर आवाज़ ना उठाओ, क्योंकि वो एक उसका अपना माइंड है वो कैमरे के सामने नहीं
आना चाह रही, बाकायदा हिजाब करके आ रही है, तो आप उसको ना करो। फ़िलहाल आपको जो बात कहनी है कहो। फ़िलहाल कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये मामला जो है इन आपस में बहन भाइयों का है। इसमें ना रियाज़ की बीवी कुछ कर सकती है, ना सरफ़राज़ की बीवी कुछ कर सकती है, पर जो मामला है वो आपस में बहन भाइयों का है, जिसमें अभी के एक तरफ देखा जाए तो सरफराज और ज़ीनत हैं, ठीक है, एक और दूसरी तरफ देखा जाए तो रियाज़ और नाज़िया हैं, ठीक है। तो ये एक इनकी मतलब टीमें बन चुकी हैं। अब कौन सी टीम किसको मिलाना चाह रही है या कौन सी टीम किससे मिलना चाह रही है, तो ये अब आने वाली वीडियो में हम लोगों को पता चलेगा। फ़िलहाल सरफराज ने तो अपनी काफ़ी वीडियो में बोला है मिलने का, झुलने का और पिछले मामलात होने का, पर कहने वाले कमेंट्स ये भी करके कह रहे हैं कि आप चाहे जितने भी मिल जाओ, जितने भी घुल जाओ, पर जो पहले बात थी ना वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि जो चीज़ बिखर जाती है ना, यहाँ तक कि लगा लो जो शीशे में दरार आ जाता है, बेशक आप शीशे को फेविकोल या एल्फी वगैरह किसी से भी जोड़ लो, पर जो कि उसके अंदर दरार का निशान होता है ना वो सारी ज़िंदगी रहता है। तो वही बात ये है कि बेशक आप लोग मिल जाओगे, झुल जाओगे, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे वही बात घूम के आपके सामने आएगी और आप उस बात को याद करोगे तो आपको अपना वक्त याद आएगा। तो ये बातें वाकई भूलने वाली नहीं होती। और वही बात है कि बहन भाई आपस में जितने भी लड़ ले झगड़ ले, बच शादी से पहले और शादी से पहले वो चाहे जितने भी लड़ ले झगड़ ले, उनकी एक अलग मस्ती मजाक हो जाता है। पर अगर शादियों के बाद कोई किसी को ज़रा सा भी कुछ कह जाता है तो वो एक अना बन जाती है, एक ज़िद बन जाती है, एक तकब्बुर बन जाता है, एक घमंड बन जाता है। तो यहाँ पे अब रियाज़ को भी सब यही कह रहे हैं कि रियाज़ को पैसों का घमंड हो चुका है, रियाज़ पैसे के बल पे इतना कूद रहा है, रियाज़ को पैसों का इतना नाज नखरा है। और जब वो पैसे नहीं थे तब ये लोग फैमिली बहुत अच्छी थी, इंजॉय करवाती थी और आपस में मिलजुल के रहती थी। अब इनके पास पैसा आया है तो ये सब अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे सारी बातें हो रही थी। और अब नाज़िया क्यों नहीं आई है इतने बड़े फैसले में, जब पूरी फैमिली मिल रही है, नाज़िया वहाँ क्यों नहीं आई है और क्यों नहीं आई है, ये नाज़िया ही अपनी वीडियो में बताएगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।